हमसे कुछ बातें करें, अपने प्लेसमेंट से लेकर के उनके जो भी एक्सपीरियंस रहे हो हम लोगों के साथ शेयर करें। इस लिस्ट में हमने कुछ चुनिंदा नाम रखे हैं क्योंकि हम तो किसी को जानते भी ना थे, लेकिन आप सबके ही मतभेद की वजह से हमको वो नाम मिल गए कि हमको किसको पकड़ना है। तो चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हिमांशु सर का कि वो अपने एक्सपीरियंस से 2 लाइनें 3 लाइनें जो भी उनके पास हो हम लोगों को बताने लाए। बिल्कुल सर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हिमांशु सर का। जहाँ तक बात करें एक्सपीरियंस की, तो हम लोग का भी एक्सपीरियंस कुछ बहुत लंबा रहा नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगस्त में आए और फिर उसके बाद आई थिंक मार्च में कंप्लीट लॉकडाउन लग गया, तो फिर फोर्स टू लीव द हॉस्टल और हम लोग घर चले गए। उसके बाद सब कुछ सारी चीज़ें वर्चुअली हुई, जो प्लेसमेंट थे हम लोग के वो भी वर्चुअली हुए, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज दैट वी हैव क्रिएटेड हियर इन आवर स्कूल विथ माय फ्रेंड्स, आवर टीचर्स, आवर फैकल्टीज, एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। हॉस्टल में आप लोग को मौका नहीं मिला रहने का, दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। अगर वो मिला होता तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। जो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन में हॉस्टल में रहे होंगे उनको पता होगा। उसके बाद अगर बात करें प्लेसमेंट्स की, जो कि अभी आपका आने वाला कुछ कंपनीज आएंगी, कैशपर आएगी, मिडलैंड आएगी, जिसमें आप लोग के प्लेसमेंट्स होंगे, तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा, स्टार्टिंग डेज कैन बी टफ। जो रियलिटीज़ हैं, जैसे आप जो एक लग्जरियस एक लाइफ यहाँ से जी के जा रहे हैं, it doesn't matter you are in MFI sector, you are in CSR or you are in NGO, you have to work in the field around 12 to 14 hours and you have to manage all the things, and along with that, in the parallel, you have to carry your that management image in that whole staff. So that is a very bit different thing, because you will be handling your clients in the regional language, in the local language on the one hand, and on the other hand you will be managing your team, you will be handling all the MS Office, PPTs and Excel sheets. So it is a very good experience, I can say. जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है ना, वो आपको एक बहुत एक अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा कि ऑन द मोमेंट हम किसी भी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। सो डोंट पैनिक इन योर अर्ली डेज। You will get what you deserve, but you have to struggle for few days. कुछ साल तक हो सकते हैं कि आपके बहुत टफ जाएं, आप कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़े, but you have to pay for it. अगर आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल आगे चल के बनना चाहते हैं, then you have to gain experience in the field, because field is very important, and that is all about MBA. Thank you so much. Thank you so much. And especially for me, because personally my life has also changed, those who know what I'm talking about. But it's great coming back to the place where we started this journey. So first of all, a very good afternoon to everyone present here, and my warm wishes to everyone, my batchmates, teachers, and also dear juniors. Talking about my experience, I would say it was not a merry-go-round, to be very true. I think it's for everyone here. No one will say things were very easy, we enjoyed. There were phases when I felt so low here, there were phases when I felt, I'm at the right place. So these things are very common, and everyone present here must have felt it. Even our teachers during their college time must have felt that maybe we have come to the wrong place. Sometimes we are like, things are not going as we planned. But actually, this is what the entire process, our journey is. So, what my advice to the experience I gained here, I would really suggest you guys to be true to your own self. Don't get lost in the crowd. Don't start being sheep in the crowd. Okay, I think that I will be able to deliver what I really want to. By really not being the sheep in the crowd is to follow your own heart. I know you will be experiencing and learning a lot of things here, but just because everyone is doing so and so, it doesn't imply that you have to do it. You have to find yourself, gain yourself in this space. Learn here, but don't, just forget your values and morals and principles while acquiring something greater in your life. At the end, you will regret it. You will be like, oh यार, सबने किया था, हमने क्यों कर लिया? मैंने तब नहीं किया होगा तो वो गिल्ट बाद में ना हो। Shall I continue? So what I'm saying is कि you don't have that, don't get that guilt in the later phase. कि यार मैंने तब किसी ने बताया नहीं, मैं कर नहीं पाया. So what I really would suggest everyone here, please don't lose yourself. Whether you're going in MFI sector or whichever sector, if I share my experience, I was one of the girls
decided from the very first day कि मुझे job तो करनी ही नहीं है. The first day I was here, I think Archana was the first person with whom I had the major interactions, and I just told ma'am कि now I want to go into academics, and rest everyone was like you'll be going for job. Even today I think I'm only a few, one of the few who's not going for the job, and I stepped down from the placement. So just don't forget your dreams. If you're the only one person here who has dreamt of something different, go for it. Because it's your dream, not others' dream. You get it? So don't just, blindly do what you are feeling others are doing. Do what you want to do. Do how you want it to be. And of course, learn new things. Learn from teachers, get great teachers, great faculty members. Learn from even the person who are not the faculty member. There's so many attendants here, you'll be seeing they're doing their job, whether it's mess or, you see in the corridor. Respect them, respect their values, respect your own values as well. And just go with the flow. Things will come by, you'll regret something, you'll cherish some feelings, but then later you'll enjoy it. I enjoyed my phase here. There were times that I was low, and I think now it's all a part of the journey, and the journey is still continuing. It's a long phase, so enjoy your moment here. And it's just a college life. Things will go bad, but in the end, you'll get good things in life also. So please, enjoy your life, and if you have plans in personal life also, please don't forget to do it. I got married. When I entered the college in August, I got engaged and I got married. Now I have a baby girl. Most of you have met. So go with your personal life, also go with your professional life. Get them in balance and achieve what you want to do. Be great to your family, friends. Be great to yourself. Enjoy this life. Be happy everyone, and best wishes to everyone. सब लोगों से बात भी हो चुकी है, ठीक है? तो हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे खड़े हुए। तो एक प्रथम फाउंडेशन के थ्रू एक एसआर का इंटर्नशिप था, वही एज मास्टर ट्रेनर ने करवाया था। तो उसी के थ्रू सबसे मेरा इंटरेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो नॉर्मली जो मोटिवेशनल लेक्चर है, तो मैक्सिमम लोगों को जिसको जरूरत होती है, मेरे मतलब जो लेवल का है, जो भी मैं जानता हूँ इस कॉलेज से रिलेटेड, तो वो मैं ऑलरेडी सबसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं भी जब नॉर्मली इस कॉलेज में पहले से ही जानता था, क्योंकि मेरे कुछ ऑलरेडी पहले MBA कर चुके हैं, तो उससे थ्रू मुझे पता था। लेकिन हाँ, ये नहीं पता था ये NGO क्या होता है, MFI क्या होता है, CSR क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं पता था। जैसे कि तुम लोग भी अभी भी परेशान हो कि कहाँ जाऊँ। सबसे मेन जो है, सबके दिमाग में यही घूम रहा है कि कहाँ जाऊँ, NGO चूज करूँ, MFI जाऊँ, CSR चूज करूँ। तो कुल मिलाकर जो है, अभी जहाँ जाना रहेगा ना, तुम वहाँ ऑलरेडी पहुँच जाओगे। तुम्हारे जितना भी कोशिश कर लो, वहाँ नहीं जा पाओगे, जो भी तुम्हारा मन है। तो सबका मन होगा कि पहले ही जॉब में ही सब लोग घुस जाओ। 40 की 40 ही सोच रहे होगे कि मेरा भी हो जाए। और जब कुछ लोगों का होगा तो थोड़ा सा डिप्रेशन लेवल भी जो है बढ़ेगा कि कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, अब कहाँ जाएं हम, क्या करें, उनका पैकेज देखो, ये वो। लेकिन एक चीज बता दूं, ये पैकेज जितना भी मैटर करता है ना, वो बस 1 ही साल करता है, ठीक है? और उसके बाद जब स्टार्टिंग में जब एक बार जॉब पा जाओगे ना, तो फिर लगेगा कि यार पैकेज नहीं, कुछ और सोचना चाहिए था या कुछ और सजेशन लेना चाहिए था, ठीक है? अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सीनियर से ये इस तरह का एक्सपीरियंस मतलब मुझे मिला है। लेकिन मैं एट लास्ट जब NGO में गया तो मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। और जितने भी MFI चूज किए हैं, ठीक है, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या मतलब ऐसा कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि उन लोगों की दुख भरी कहानी जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ। और मुझे लगता है कि ग्रोथ की बात है और ये जो पैकेज की बात है, तो वो मुझे लगता है कि 1 ईयर बाद पता चल जाएगा या 2 ईयर बाद पता चल जाएगा कि हमारी और आपकी जो है क्या लेवल है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि रेवा मैम है यहाँ पे, तो प्लेसमेंट की तो चिंता, अगर GBP साई में आए हो तो मुझे नहीं लगता कि इसकी चिंता करने की जरूरत है, ठीक है? तो प्लेसमेंट तो कंफर्म है, होना ही होना है। बाकी यही है कि मेरे अलावा, क्योंकि नॉर्मली केवल मुझे से ही सब लोगों की बात हुई है, तो मैं यही चाहूंगा कि तुम लोग आपस में भी, क्योंकि कॉलेज जो है वो
मैक्सिमम बंद ही था, और ये तुम लोग एक दूसरे को ही लगभग 1 वीक से ही केवल एक दूसरे को लगभग जाने हो और थोड़े थोड़े अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग आपस में मिल के रहो, क्योंकि ये 6 मंथ 1 ईयर में ही तुम लोग एक दूसरे को जानोगे और उसके बाद सब अलग हो जाओगे। तो ये ग्रुपिंग वाला सिस्टम कि वो मेरे ग्रुप का है वो तुम्हारे ग्रुप का है, ये वाला सिस्टम नहीं करना। सब लोग एक जैसे एक साथ एक ग्रुप में ही रहना और सारे सीनियर से इंटरेक्ट करना है, किसी एक से नहीं। जो भी तुम्हें देखो सब राय देंगे, लेकिन ये है कि जो अच्छा सजेशन दे वो कैप्चर करना है, वो पॉजिटिव रिजल्ट जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उसको लेना है, उससे सीखना है, उस पर काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे एक तरह से मेंटर हो गए और जो हम कहेंगे वही तुम करो, नहीं। हम जो अगर अच्छा चीज करते हैं या जो भी कहें उससे मतलब निचोड़ लो कि क्या क्या अच्छी चीजें हैं वो ले लो, उसको एब्जॉर्ब करो, उस पर काम करो और आगे। एनजीओ के बारे में बता दिया, हिमांशु ने अपना बैलेंस रखी चीजें, माइक्रो फाइनेंस नहीं एनजीओ, और सानिया ने लाइव के बारे में बता दिया पूरा। तो जो मुझे जो बोलना है, जो एक चीज थोड़ा सा मुझे लगता है ऐड कर देनी चाहिए, वो ये है कि अभी जो ना हमको बस स्टार्ट कर देंगे, हमको स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं से थोड़ी सी बाउंडेशन है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, हम एंड कहाँ करेंगे वो आप लोगों पर, क्योंकि उसके बाद ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास बाउंडेशन नहीं है, बस स्टार्टिंग के लिए बाउंडेशन। तो अभी अपॉर्चुनिटी जहाँ भी मिलती है वहां से हमको स्टार्ट करना है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो, एनजीओ हो। बाकी बाद में चीजें बदलेंगी एकदम। हम लोग अपने एलुमनाई को देख रहे हैं, सीनियर्स को देख रहे हैं कि उन्होंने चीजें बदली हैं, जहां वो चाहे वहां आज काम कर रहे हैं, वहां पे उनकी चॉइस है कि वो अब कहाँ काम करेंगे, कब एक्सपीरियंस, फर्दर एक्सपीरियंस। बट अभी क्या है, अभी बस स्टार्ट करना है, और कठिनाई जो है, जो चीजें हिमांशु बता रहे थे वो सब जगह मिलेगा, कोई भी सेक्टर आप चूज करेंगे, एनजीओ, माइक्रो फाइनेंस, सीएसआर, कहीं भी जाएंगे कठिनाई तो है। सुबह 6 बजे उठ के नहा लेना और फील्ड में पहुंच जाना बहुत कठिन है, यहाँ से निकल के जाने के बाद पता चलता है। तो अभी क्या स्टार्ट कर देना, आपको ये नहीं देखना है कि नहीं हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं। स्टार्ट करिए, एंड कहाँ करेंगे, आप कहाँ ऊपर जाएंगे, वो बात में आपके ऊपर चीजें निर्भर करती हैं। बाकी कोरोना ने बहुत कुछ छीना हम लोगों से, कॉलेज मेमोरीज आप लोग नहीं जी पाए, जो हम लोगों ने जी हॉस्टल में या जो भी है कॉलेज की यादें, तो हम लोग बस यहाँ पोस्टर में नॉन मेस हुआ करता था, अभी कोरोना की देन है एक चीज और जुड़ गई है, सर दोनों एक साथ हो जा रही है। ऐसे 2 इवेंट हुआ करते थे, एक नॉन मेस के लिए हुआ करता था, एक अक्सर के लिए, दोनों हम लोग जीते थे ऐसे ही जैसे आप जी रहे हैं। तो चीजें जो है आधी हो गई हैं, क्यों, कोरोना की वजह से। ठीक है, फिर भी आप लोगों के पास अब जो टाइम बचा है उसको अच्छे से तय करिए और स्टार्ट करिए, बस कहीं से स्टार्ट करिए, और एंड कहाँ करना है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। जो बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मैंने शैतानियां बहुत की है यहाँ पे, ऐसा लाइक आई वाज नॉट पढ़ाकू बच्चा काइंड ऑफ, बहुत पंगे हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े, ऐसे ही मतलब नॉर्मल वाले लड़ाई झगड़े कि हाँ ऐसे कैसे। चलते क्लास में प्रोजेक्टर बंद कर देती थी, क्लास में जब बोर होता था तो मैंने बहुत बार प्रोजेक्टर्स भी बंद किए कि आप लोग मत करना ऐसा। झगड़ा करने के बाद स्टेटस लगाती थी सबके लिए। हाँ, मुझे गुस्सा आता था, मेरा झगड़ा हो जाता था तो पर्टिकुलर उस इंसान के लिए नेम एड्रेस करके नहीं बाकी सारा बखान कर देती थी कि देखो मैं नाराज हूँ, मतलब ऐसा ऐसा तुमने किया है। Like I am a very expressive person. I believe in expression. I want to be just myself. I never ever compared myself from anyone else. I want कि जो मन कर रहा है ना कर लो। ये लाइफ पता नहीं कब तक की है, क्या है। Even you won't believe मेरा अभी जॉब शुरू हुआ तो वाराणसी में थी मैं, तो आफ्टर मतलब 6 के बाद हम लोग भी फ्रेंड्स प्लान कि चलो बताशे खाने, फुल्की चाट खाने चलते हैं, लाइक ओके चलो चलते हैं। तो शादियों का सीजन चल रहा है लाइक अभी दिसंबर में, तो रास्ते से बारात जा रहे थे। आई वाज इन माय ट्रैक सूट शूज, ट्रैक सूट एंड पैंट्स एंड बाथरूम चप्पल्स लिटरली। तो आई सेड गाड़ी रोको, हम लोग सब ग्रुप में थे, गाड़ी रोको, जैसे मैं बारात जा रही है तो मुझे बारात में नाचना है खड़े होकर। लाइक तू इस होली में ऐसे जाएगी वो भगा देंगे, मैंने कहा ओके वी विल सी, भगा देंगे वापस आ जाएंगे, कौन सा मुझे उनसे रिश्तेदारी करनी है या कुछ भी, मतलब जज करेंगे, आई डोंट केयर, मुझे उससे नहीं, लेकिन मुझे अपना मोमेंट जीना है। आई वेंट देयर, फर्स्टली बारातीज वर लाइक कि आप कौन है, मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा डांस करने का मन था, हम रास्ते से जा रहे थे तो सोचा आप लोग को ज्वाइन कर ले। दे वर सो हैप्पी, मतलब मैं लोअर टी-शर्ट में इतना नाची, वहां पे इतना डांस किया, और तो मैं जा रही थी बारात वाले बाकी सब छोड़ के बाय टाटा कर रहे थे, आंटी थैंक यू दे रही थी
एक्चुअली कई बार होता है कि ग्रुप से मुझे बाहर निकाल दिया जाता है। जो कॉलेज ग्रुप बने हैं ना, उसमें से गुस्से में झगड़े वगड़े होते हैं तो मैं खुद ही लेफ्ट कर देती हूँ, या तो बिकॉज आई टेक माई ओन, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ मैं, और शायद लोगों को पसंद नहीं आता, बट इट्स फाइन, आई एम ओके विद दैट कि मेरा परसेप्शन अगर आपसे नहीं मैच कर रहा है, दैट इज ओके। सो आई जस्ट वांट टू से बी योरसेल्फ एंड लिव योर लाइफ एंड Thank you very much.